اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ شواہد موجود ہیں کہ علیمہ خان اپنے بھائی کے ایسے پیغامات لاتی رہی ہیں جو ملک میں انارکی اور افراتفری پیدا کریں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جیل میں ہیں تو جیل کاٹیں، اگر انہوں نے جیل میں بیٹھ کر تحریک چلانی ہے اور انارکی اور افراتفری پھیلانی ہے تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قانون ایسے افراد کی ملاقاتیں روکنے کا اختیار انتظامیہ کو دیتا ہے، اگر انتظامیہ کا موقف غلط ہے تو اسے عدالت میں غلط ثابت کریں، ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر تشدد کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا۔ دھرنا دینا کسی کا اختیار نہیں، ایسے لوگوں کو اٹھانا انتظامیہ کا اختیار ہے، لیکن اچھے طریقے سے ہٹایا جانا چاہیے، اس میں تشدد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین پر تشدد کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی پیغام رسانی کرتی رہی ہے اور ایسے پیغامات لے کے آتی رہی ہیں کہ جو ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرے اور ملک میں انارکی اور افراتفری پیدا کرے۔ ایسا تو پھر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ملاقات نہیں روکی جا سکتی، لیکن یہ اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملاقات کے ذریعے سے ملک میں کوئی تحریک چلائے، ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلائے، ملک میں افراتفری پھیلانے کے جو ہے وہ اقدامات کرے۔ اور ایسے پیغامات اگر کوئی فرد لے کے آتا ہے، ایسے افراد کی ملاقاتیں، قانون جو ہے وہ ان کو روکنے کی ایڈمنسٹریشن کو یہ اختیار دیتا ہے۔ تو اگر یہ الزام ہے ایڈمنسٹریشن کا اور اس وجہ سے ملاقاتیں روکی گئی ہیں تو اس کو یہ عدالت میں کنٹیسٹ کرے۔ پولیس کی جانب سے ان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا اور وہاں پر ان کی ایک بہن گر گئی، کس طرح سے دفاع کرے گی حکومت اس کا؟ رانا ثنا صاحب، خواتین پہ تشدد جو ہے یہ بالکل اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ ایسا عمل جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ وہاں موقع پہ اس کارروائی کے لیے موجود تھے ان سے باز پرس ہونی چاہیے اور ان کا موقف بھی لیا جانا چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی تو اسے کسی مناسب طریقے سے، جس میں تشدد کا پہلو بالکل نہ ہو، اس طریقے سے ریزالو کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوتا رہا ہے، اسے وہاں پہ کنٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے میثاق آئین اور جمہوریت پر دستخط کرنے کی پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمام جماعتوں کے سربراہ اتفاق کر لیں تو بانی پی ٹی آئی سے اس میثاق پر دستخط کروانا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ حیدر شرازی رپورٹ کریں۔ جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے بنی گالہ پہنچی۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا وہ میثاق آئین اور جمہوریت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے متعلق گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ علیمہ خان نے بھی محمود خان اچکزئی کے موقف کی تصدیق کی۔ کاکا چاچا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، یہ اس کی بہنیں ہیں۔ علیمہ خان اور نورین خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں رکاوٹوں کا معاملہ اٹھایا۔ نہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے، ہم اڈیالہ پھر جائیں گے منگل کو، ہم ساری رات اب بیٹھیں گے۔ اگر انہوں نے ہمیں نہ ملاقات کرنے دی، ہمیں یہ مار پیٹ کے دوبارہ اٹھائیں، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ اپوزیشن قیادت کا کہنا تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خاتمے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ کیمرامین ساجد طارق کے ساتھ حیدر شرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان قومی اسمبلی نے رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کے نام خط میں لکھا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایوان میں اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہونے کے اعلان سے پہلے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے نام جمع نہیں کرائے جا سکتے۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی نااہلی کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی قائد حزب اختلاف کی تقرری کے لیے تاریخ، وقت اور مقام کا اعلان کرتے ہیں۔ اسپیکر اس رکن قومی اسمبلی کو قائد حزب اختلاف نامزد کرتے ہیں جسے ایوان میں اپوزیشن ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا اعلان ضروری ہے تاکہ کوئی بھی رکن قومی اسمبلی قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کے لیے اپنی درخواست جمع کرا سکے۔ عام انتخابات کے بعد بھی اپوزیشن لیڈر کی نشست پر تقرری کے لیے یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ عمر ایوب کی ریٹ پٹیشن پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ان کی نااہلی کے کیس کو واپس پشاور ہائی کورٹ بھیجا ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی نااہلی کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम से खिताब पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। सुहेल आफरीदी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन को मॉनिटरिंग रिपोर्ट इरसाल कर दी गई। इस पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में सुहेल आफरीदी से मुताल्लिक़ मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहम्मुल और बर्दाश्त को अगर बहाल करेंगे तो पाकिस्तानी माशरा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा। इस्लामाबाद में यौम बर्दाश्त और रवादारी की तकरीब से खिताब में कहा, बर्दाश्त और रवादारी क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर मौजूद है कि मुल्क को कैसा होना चाहिए। रूस ने पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालिसी की पेशकश कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू में कहा कि रूस पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालिसी के लिए तैयार है। रूस को इलाकाई सलामती खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। रूस पाकिस्तान को अहम इलाकाई शराकतदार के तौर पर देखता है। पाकिस्तान सदर पुतिन के ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप के विजन के तहत अहम इलाकाई हैसियत रखता है। सदर पुतिन के विजन के तहत इलाकाई मसाइल इलाकाई फरीक़ैन को ही हल करने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को में रूसी सदर पुतिन और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। मॉस्को में होने वाली मुलाकातें SCO इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। सदर पुतिन का कहना था कि वो खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक़ डार ने रूसी वज़ीर ख़ारजा से वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने, वसीतर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम समेत कसीरुल जिहती फ़ोरम्स पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बरतरी हासिल की। 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान चीनी हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। जंग में चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को आजमाया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी रफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फ़रोख्त के लिए मौसर दलील बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब दोनों अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर फख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ की हैं। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ 17 और 18 नवंबर के दौरान की। बाजोड़ में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खारजी को हलाक किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों स्पिनवाम और जाकिर खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए, जिनमें 2 खवारिज हलाक किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में एक खारजी को हलाक किया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म इन हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। पंजाब में 1.5 साल में जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा कि पंजाब भर में 1100 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। मुखालिफिन भी जानते हैं नून लीग को आवाम की खिदमत करना आती है। मरियम नवाज ने कहा कि काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं होता। पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा।
गाली गलोच, नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो, तो क्या नाम आता है ज़हन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, एटमी धमाके, एयरपोर्ट्स। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती, मुल्क तरक्की करना शुरू करता। हमें हमारे पे ये इल्ज़ाम लगता है कि सारा काम लाहौर में होता है, लाहौर में सबसे आखिर में ये बसेज आई हैं। बड़े शहरों में ये इसको मैं बाद में लेके आई हूँ, पहले मैंने छोटे शहरों से इसको लॉन्च किया ताकि छोटे शहरों को भी एहसास महरूमी ना हो। काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को किसी सूरत भी फौज गजा नहीं भेजनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान को कायद आज़म वाली पोजीशन में रहना चाहिए कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ एक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को गजा में अपनी फौज भेजनी चाहिए? नहीं भेजनी चाहिए। गजा के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई फोर्स जानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये तो फिर आपस में फ़लस्तीनियों से लड़वा देंगे, और जो काम इसराइल को कर रहा है इसराइल, तो हम क्यों करें वो काम? हमास और फ़लस्तीन अथॉरिटी, अल-फतह और जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पर जिहाद इस्लामी, सब का इत्तेफाक है कि फ़लस्तीन गजा के अंदर जो है वो कोई भी फोर्स बाहर की नहीं आनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि बातें कितनी भी कर लें, जितनी भी डायलॉग हुए हैं और मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें कहीं पर भी ये बात लिखी भी नहीं है कि ये काम करना है। और जो भी मीडिएशन करने वाले ममालिक हैं वो भी ये समझते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। अलबत्ता बॉर्डर के लिए लोग तैयार हैं कि ताकि इसराइल से भी बचने के लिए कोई ना कोई जो है वो सूरत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को मेरा ख्याल सूट नहीं करता। पाकिस्तान को इनकी सिफारती और जो इनकी मदद के लिए हम कर सकते हैं वो कर। पाकिस्तान की जो रियासत है उसका मौक़िफ़ ये है कि मसला फ़लस्तीन का हल जो है वो 2 रियासती फार्मूला है। आप इसकी मुखालफत करते हैं, क्यों? इसलिए मुखालफत करते हैं कि जब आप कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, तो आप अपने जो प्रिंसिपल स्टैंड है आपका कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, तो उसी जुमले में आप उसको तस्लीम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को कायदे आज़म वाली पोजीशन पे रहना चाहिए कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ एक रियासत की बात करनी चाहिए और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च होता है। महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। कलील मुद्दती मंसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने ब्रीफिंग दी है कि आइंदा साल मुल्क में मानसून ज़्यादा शिद्दत के साथ आएगा, जो रवां साल के मुकाबले में 50% तक ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी तैयारी पहले से ज़रूरी है। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में ज़िला इंतज़ामिया और पीरा फोर्स की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी है। कई मकामात पर काबज़ीन से अराज़ी वागज़ार कराकर नीलाम कर दी गई और रेवेन्यू कौमी ख़जाने में जमा करा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के मुताबिक ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद अहमद के तबादले के बाद अब नए AC की निगरानी में जारी रहेगा। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक खानपुर में जारी कार्रवाई के बाद माहाना किराए की मद में फ़ंड वसूल होना शुरू हो गए हैं। लाखों रुपए की अराज़ी अब बल्दिया की मिल्कियत में मुंतकिल हो गई है। जंगो जियो ग्रुप ने मुल्क की मीडिया इंडस्ट्री में पहली बार अपने स्टाफ की ज़हनी सेहत के लिए एक मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू करने का फैसला करते हुए अहम कदम उठाया है। ये प्रोग्राम मिलकर आओ बात करें के स्लोगन के तहत होगा, जिसका मकसद काम की जगहों पर ज़हनी दबाव को समझना और उसमें कमी लाना है। पाकिस्तान में हर 5 में से 1 शख्स किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर नौजवान तबका है। जंग और जियो ग्रुप ने मुल्क की मीडिया इंडस्ट्री में पहली बार अपने स्टाफ की ज़हनी सेहत के लिए मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता प्रोग्राम्स शुरू करने का फैसला किया और इस हवाले से ज़हनी सेहत और न्यूरो साइंस सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे साइनेप्स पाकिस्तान की सरबरा डॉक्टर आयशा मियाँ और जियो न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अज़हर अब्बास के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। इस समझौते का मकसद काम की जगहों पर ज़हनी दबाव को समझना और इसमें कमी लाना और
वर्कर्स को ऐसा माहौल फराम करना है जहां वो अपने मसाइल और जहनी दबाव के बारे में खुलकर बात कर सकें। जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं जो कि वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से दबाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी भी होती है, कभी कभार डिप्रेशन भी हो जाता है, बिकॉज जिस किस्म के आप चीज़ें देखते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। तो एक तो सबसे पहले कि उनके लिए समझना, उनको समझना कि क्या चीज़ है ये, किस किस्म के सिम्टम्स होते हैं, कब मुझे परेशान होना है, कब ये एक नॉर्मल चीज़ है। सो एक लिटरेसी जिसको हम मेंटल हेल्थ लिटरेसी कहते हैं कि थोड़ा सा आपको एजुकेशन मिल जाए कि मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या कंसर्निंग चीज़ें हैं और क्या हैं जो कि डे टू डे इश्यूज़ की वजह से हो रही हैं। मफामती यादाश्त के तहत माइंड वेलनेस, काउंसलिंग और थेरेपी को एक मुनज़्ज़म तरीके से इदारे के निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस इक़दाम के साथ जियो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का पहला इदारा बन गया है जिसने अपने वर्कर्स की ज़हनी सेहत को बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ अव्वलीन तरजीह बनाया बल्कि अमली कदम भी उठाया है। जंग और जियो ग्रुप इंतजामिया का कहना है कि इस प्रोग्राम के जरिए इदारे के तमाम मुलाजमीन की ज़हनी सेहत और दबाव के खात्मे के लिए मदद, रहनुमाई और सपोर्ट के ऐसे दरवाजे खोले जाएंगे जो मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक नई मिसाल बनेंगे। MOU साइन करने की तकरीब IBA सिटी कैंपस में मुनक्किद की गई जिसमें जियो से वाबस्ता मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम पर खुलकर गुफ्तगू भी की गई और इसे सराहा भी गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंक कर तिलाई तमगा जीता। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर की थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स तीसरे नंबर पर रहे। बैतुस्सलाम यूथ सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले 9वें बैतुस्सलाम ओलंपियाड मुकाबले ख़त्म हो गए। ओलंपियाड के ये मुकाबले जुमेरात 6 नवंबर से इतवार 16 नवंबर तक जारी रहे, जिनमें मुल्क भर के 300 से ज़ायद स्कूल्स के तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अकादमिक और स्पोर्ट्स के मजमूई 30 मुकाबलों में 3000 से ज़ायद तलबा शरीक हुए। इख्तितामी और इनामी तकरीब मोइन खान अकेडमी कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें शरई अदालत के जज जस्टिस मोहम्मद अनवर, जस्टिस रिटायर्ड नेमतुल्लाह फलपोटो और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो और कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मौजूद थे। जस्टिस रिटायर्ड नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस मोहम्मद अनवर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का बैतुल इस्लाम की खिदमात को सराहते हुए कहना था कि बैतुल इस्लाम के साथ ताउन करने वाले खैर के काम में हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बैतुल इस्लाम भी इस टाइम में बेहतर बना हुआ है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में इस टाइम, क्योंकि जो लोग जहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल इस्लाम के कारकुन जितने भी जहाँ पे इस टाइम पे मौजूद है, यहाँ पे जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये बुनीर में हादसा हुआ तो वहाँ पहुँच गए, गिलगित पहुँच गए, हर जगह पे पहुँचे होते हैं। अभी आप हम सब के सामने शाम में, सीरिया में, फ़लस्तीन में, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हुए हैं। क्रिकेटर हारिस रऊफ ने भी अपने खिताब में बैतुल सलाम की तालीमी रफ़ाई खिदमात को सराहते हुए कहा कि ऐसे इदारे बहुत कम हैं जहां दीनी तालीम के साथ स्पोर्ट्स के ज़रिए बच्चों की तरबियत की जाती है। हमारे बच्चे अगर इन इदारों में अगर पढ़ेंगे और वो अपना के अपने फैमिलीज़ का नाम रोशन करेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि बैतुल सलाम ओलंपियाड का मकसद तलबा में सेहतमंद मुकाबले की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना और उन्हें एकेडमिक और स्पोर्ट्स सरगर्मियों में आगे बढ़ने का मौका फराहम करना है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ सजाद वकार, जियो न्यूज़, कराची। 1,56,000 आबादी वाले मुल्क कुरासाओ ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके नई तारीख रकम कर दी। कुरासाओ से कबल आइसलैंड को 3.5 लाख आबादी के साथ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल है। ग्रुप बी में कुरासाओ 12 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने T20 ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज़ में शरीक टीम्स के एजाज़ में सोहराना दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत इमेज और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में ट्राई नेशन सीरीज में शरीक पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में दिए जाने वाले ज़ोराने में वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क में अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। उनका कहना था कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया वो दाद के काबिल है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में सीरीज के इंतजामात मिसाली हैं। ज़ोराने में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला व चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी, श्रीलंकन हाई कमिश्नर और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर भी शरीक थे।